everyone, welcome to my channel. In today's video, we will learn about basic concepts of electronic spreadsheet, that is your unit 2. Now, please watch the video till the end so that you can understand the concepts properly about your electronic spreadsheet, that is called Calc, C-A-L-C, Calc in OpenOffice. First, before starting our video, let's understand what a spreadsheet is. A spreadsheet is basically a sheet in which you can store large amount of data. Large amount of data means if you are in a school and you have large number of students in your school. If you want to maintain the data of all the students, for that you need a spreadsheet. In that particular sheet, you can maintain the records of students like their name, address, class, roll number, father's name, mother's name, whatever necessary information you need to maintain your school record, that you can do. Our first topic for electronic spreadsheet is session 1, scenarios analysis. Okay, to understand this, let's take an example. As you can see in the diagram, suppose we have a company and in that company some managers we have appointed. अब जो managers हमने appoint करें, obviously what will be their work? They have to look on the data that is there in the company. So sometimes what they get, they have large amount of data to deal with. बहुत सारा उनके पास data होता है, bulk of data उनके पास होता है जिस पे उन्हें काम करना होता है. And when they have this bulk of data, they have to make some crucial decisions for that data. तो उस data के लिए उन्हें कुछ crucial यानी कि important decisions लेने पड़ते हैं. वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि जब तक वो ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे तब तक उन्हें अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो दे हैव टू टेक टू क्रूशियल डिसीजंस. फर्स्ट इज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग अ चेंज. इफ दे आर गोइंग टू मेक अ चेंज, अगर वो कोई भी बदलाव करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, तो उस चेंज का क्या इफेक्ट होगा. फर्स्ट इज दैट. एंड सेकेंड इज what underlying factors must be changed. और सेकेंड डिसीजन उनका ये होता है कि अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए जिनसे कि हमें हमारा रिजल्ट मिल जाए. इन दिस यू हैव कंसोलिडेटिंग डाटा. कंसोलिडेटिंग डाटा क्या होता है या कंसोलिडेटिंग ऑफ डाटा क्या होता है. ठीक है, एक वो तरीका जिससे कि हम बहुत सारे डाटा को अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे लाकर स्टोर कर देते हैं, उसे हम कंसोलिडेटिंग ऑफ डाटा कहते हैं. मींस द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट अ सिंगल पॉइंट और प्लेस with the help of some special functions like your sum, average, count, minimum, maximum, percentage. These all are your special functions. So when we are using these special functions to collect our data at a single place, that is known as data consolidation or consolidating of data. Next topic is consolidating data in Calc. Now let us first understand that how we can consolidate, means we can collect our data in Calc. So what we have to do, let's first move on to our sheet. Here what I have done, in my sheet 1 I have created a data of January of 7 days in which I have written the expenses, that for 7 days what were the expenses, कि 7 दिनों तक मैंने कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया. इन शीट 2 आई हैव द डिटेल्स ऑफ February month, that in February for 7 days what amount I have spent. Okay, and in third sheet March I have the details of March expenses. तो मैंने 3 शीटों में क्या किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ्स में मैंने 7 डेज के अंदर कितना कितना खर्चा किया मैंने वो लिख लिया. अब मैं चाहती हूँ कि इन तीनों शीट का सारा जो डाटा है उसका कैलकुलेशन मुझे मेरी शीट 4 पर मिल जाए. ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि 3 शीट का डाटा इकट्ठे एक ही शीट पर आ जाए.
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने ये शीट ओपन कर ली, शीट 4 जिस पे आपको आपका डाटा चाहिए. देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू गो टू डाटा ऑप्शन. Click on data option and here you will get the option consolidate and click on it. As you click on it, a window is displayed in front of you. You have been given the function in the starting. You can select any function over here. By default, sum is already selected. So I am choosing sum. But if you want, you can select any other function. Okay. Then here you have to write the consolidation ranges. It means कि कौन वो डाटा आपको सेलेक्ट करना है जिसको आपको कलेक्ट करके एक शीट पर लेके आना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कहाँ से मिलेगा डाटा, आपने क्या करना है, आपके पास ये दे रखा है सोर्स डाटा रेंज, कि डाटा रेंज का सोर्स. ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो आपकी रेंज आएगी वो कहाँ से आएगी, गो टू योर शीट 1, यू गॉट दिस, come to your sheet 1, select your data from here. Okay, you got the source from here. Then again click on this shrink button and click on add. तो आपने जो इस सोर्स डाटा रेंज के अंदर अपना डाटा सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन रेंजेस में ऐड हो गया. इन द सेम वे यू हैव टू डू इट फ्रॉम शीट 2 ऑल्सो. ठीक है, आपको शीट 2 में से भी लेना है ये. अगेन क्लिक ऑन दिस, ऐड. ओके, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल 3 शीट्स एंड ऐड देम. ओके, आपका ये तीनों शीट्स का डाटा कहाँ जाके ऐड हो गया, कंसोलिडेशन रेंजेस के अंदर. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू कम टू दिस कॉपी रिजल्ट्स टू, कि आप इन सारी शीट्स का डाटा कहाँ चाहते हैं. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें आके मैं श्रिंक करूँगी. आई विल गो टू शीट 4 एंड आई विल सेलेक्ट एनी सेल ओवर हियर. ओके, एंड देन क्लिक डन. आफ्टर डूइंग दिस press OK. So what you got the sum of all the data of all 7 days from all the 3 sheets in a single sheet, that is your sheet 4. ठीक है, so this is known as what, this is known as consolidation of data. इस तरीके से आप अपने डाटा को कंसोलिडेट करके रख सकते हैं. Our next topic is calculating subtotals. ठीक है, क्या सब टोटल्स को कैलकुलेट करना. ठीक है, अब सब टोटल्स का मतलब क्या होता है. ओके, सपोज यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा. ओके, सपोज मेरे जून मंथ की, मतलब पूरे जून मंथ में मैंने हर दिन में कितना कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, वो सब मुझे दे रखा है. बट आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट देम, लेकिन मैं उन्हें मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज सब टोटल्स. ठीक है, क्योंकि सब टोटल्स क्या करता है, इट विल प्रोवाइड मी द टोटल ऑफ डाटा ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ फिगर्स. ठीक है, तो लार्जर ग्रुप ऑफ फिगर्स का जो डाटा है ये मुझे एक बार में सब कुछ कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. फॉर दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डाटा. मैंने इसके लिए ऑलरेडी अपना एक डाटा क्रिएट कर लिया है. ठीक है, in this column I have mentioned the areas, second items and then sales. ये मेरे पर्टिकुलर एरियाज हैं. ठीक है, हर पर्टिकुलर एरिया में मेरे किस किस आइटम की सेल हुई है और कितनी कितनी सेल हुई है उसका अमाउंट है. ओके, अब मुझे इसको सब टोटल करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट ऑल दिस डेटा. ओके, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग इट click on data option and here come to subtotals option, click on it. You got a window. Okay, in group by option, group by मतलब आपको अपना डाटा किस चीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए, एरिया के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग. सो आई एम चूजिंग आइटम. ओके, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर. किसका सब टोटल करना है, सेल्स का, यानी कि मेरा ये जितना अमाउंट है उसको मुझे कैलकुलेट करना है कि हर एक आइटम पे
मेरी कितने की बिक्री हुई है, दैट हाउ मच मनी आई हैव अर्नड ऑन अ सिंगल आइटम. ओके, फ्रॉम हेयर यू कैन use the functions. Okay, I'm using sum over here and then press OK. Okay, what you got the areas. ठीक है, जिन पर्टिकुलर एरियाज में आपका एल्मीरा बिका था, in which you have sold an Almira. Okay, and for how much you have sold, after that you got the sum over here. Okay, it's 15,697. In the same way, you got the areas in which you have sold the chairs, then you got the sum of chairs over here. Okay, in the same way desk also. Like this you can calculate the subtotals. Okay, अगर इसको हम एरिया वाइज करते, ओके, सपोज आई एम मेकिंग इट undo. My data is already selected. Go to data option, click on subtotal. Firstly I had done what, I had selected item. Now I am selecting area. Okay, and then sales and sum. Okay, so what they had done, in a single area they have shown me the sum. एक सिंगल एरिया में इन्होंने मुझे दिखा दिया, तो ऑब्वियसली मैं एक सिंगल एरिया में जितने का माल सेल कर रही हूँ मुझे उतना ही अमाउंट शो होगा, राइट. If I am using some other function in this, okay, let's select maximum and sales I am selecting. Okay. Press OK. Okay. This also they are showing us what, in a particular area we have earned the same amount. Okay, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हमने जितनी बिक्री करी वो उतना ही हमारा मैक्सिमम अमाउंट होगा. ठीक है, now next topic is what if analysis. Okay, what if analysis is what, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वैल्यूज को चेक करने के बाद चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस को करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो भी हमने चेंज किया उसका क्या इफेक्ट हुआ हमारे आउटपुट पर. ठीक है, द प्रोसेस इन विच वी मेक द चेंजेस इन द वैल्यूज टू चेक what will be the effect of our changes in our output. ठीक है, कि हमारे आउटपुट में उन चेंजेस का क्या असर होगा. ओके, इट हैज 3 टूल्स. फर्स्ट इज सिनेरियोज, गोल सीक एंड थर्ड इज सॉल्वर. ओके, व्हाट इफ सिनेरियोज क्या करता है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ मॉडल वेयर चेंजेस मेड इन द वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द आउटकम. ये हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है जिसमें कि हम वैल्यूज के अंदर जो चेंज करते हैं वो चेंज हमें हमारे आउटपुट में दिखाई देता है. ओके, so let's see how it works. Let's move to the sheet where we have created our data. यहाँ पे हमने अपना ऑलरेडी एक डाटा बना रखा है. And what kind of data it is? It is a home loan amount, loan data. Okay, ये हमारा होम लोन का डाटा है. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अपना सिनेरियोज लगाना है. ठीक है, तो सिनेरियोज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल सेलेक्ट आवर डाटा. हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे. सपोज आई वांट टू अप्लाई सिनेरियोज इन दिस डाटा. ठीक है, तो मैंने इस डाटा को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, उसके बाद I will go to tools option and from here I will search for scenarios. Here I am getting scenarios and click on this. Okay, what they are asking, create scenario. हमें एक scenario बनाना है. So provide a name to your scenario. Okay, suppose I am providing a name, home loan 3 years, यानी कि मेरा वो होम लोन जो कि 3 इयर्स के लिए चलेगा. ठीक है, क्लिक ऑन दिस कॉपी बैक क्योंकि आपको इसको अनचेक करना है. ठीक है,
प्रोवाइड एनी कलर टू योर बॉर्डर, अपने बॉर्डर को आप कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं एंड देन प्रेस ओके। ठीक है, तो ये मेरा सिनेरियो इसमें अप्लाई हो गया। ओके, अगेन आई विल सेलेक्ट माई डाटा। ओके, बट व्हेन आफ्टर चेंजिंग सम डाटा। ठीक है, क्योंकि सिनेरियोज में हमें डाटा चेंज करना होता है और फिर डाटा को चेंज करने के बाद हमें देखना होता है कि जो हमने चेंजेस किए थे उसका क्या इफेक्ट हुआ हमारे आउटकम पे। ओके, so what I am doing right now, number of installments I have 40, I am making it 46. Okay, after making it 46, select your data, again go to your tools option, go on scenario, again give a name, home loan for 5 years। पहले जो मैंने अपना सिनेरियो बनाया था मैंने 3 years के होम लोन के लिए बनाया था, बट राइट नाउ द सेकेंड वन दैट आई एम क्रिएटिंग दैट इज फॉर होम लोन ऑफ 5 years। ओके, uncheck this, copy back and click on OK. Okay, so when you click on this arrow you will get both the options, home loan for 3 years। Okay, it is getting orange because I have chosen orange color for the border, and for 5 years I haven't chosen any color, so by default it is giving me black। And see, when it is for 3 years our installments were for 40 and our amount was what, 18,273, but when I am selecting for 5 years it is 46 and our amount reduced to what, 16,336। तो this is the effect of our change। अब इस मंथली इंस्टॉलमेंट में जो बदलाव आ रहा है वो हमारे चेंज की वजह से आ रहा है, जो हमने इसमें चेंजेस करे थे। ओके, नेक्स्ट इज अवर गोल सीक। ओके, गोल सीक क्या करता है, हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है इनपुट को देखने के लिए। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड, अभी हमने क्या करा था, हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को चेंज कर रहे थे तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट में चेंज आ रहा था। अब हमें ये देखना है कि अगर हम अपने मंथ के लिए इंस्टॉलमेंट इतने रुपीस की बांधते हैं, ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, इसको हम बैकवर्ड कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, so let's see how it will work। Same data I have copied here, select your data। Okay, go to tools option and click on goal seek। Okay, in goal seek what are the default settings हो गए, formula cell। अब कौन सा फॉर्मूला सेल है आपका, ये मंथली इंस्टॉलमेंट का, क्लिक ऑन इट। टारगेट वैल्यू मतलब आप कितना इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं 9,000 देना चाहती हूँ। ठीक है, वेरिएबल सेल, कौन से सेल में आपको अपना रिजल्ट देखना है, सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ओके, प्रेस ओके। सो व्हाट इट इज आस्किंग, गोल सीक सक्सेसफुल, गोल सीक जो सक्सेसफुल रहा। इंसर्ट रिजल्ट इनटू करंट सेल, क्या आप करंट सेल में अपना रिजल्ट करना चाहते हैं, तो यस। तो आप देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में हमारे क्या आ गया, 110, यानी कि 110 इंस्टॉलमेंट्स में हमारा जो ये अमाउंट है ये पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा गोल सीक होता है। नेक्स्ट इज अवर सॉल्वर। ओके, सॉल्वर क्या करता है, बहुत सारी अननोन मल्टीपल वैल्यूज के साथ डील करता है। ठीक है, और हम उस इतनी अननोन वैल्यूज के अंदर ऑब्वियसली हमारा कुछ मैक्सिमम डाटा भी होगा, कुछ मिनिमम डाटा भी होगा, तो ये उन अननोन वैल्यूज के अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट सर्च करने में मदद करता है। ठीक है, इस सॉल्वर टूल क्या क्या है, ये एक इलेबोरेट फॉर्म है हमारे गोल सीक की। ओके, सॉल्वर टूल इज अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक and it deals with equations with multiple unknown variables। गोल सीक में हमने तो एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करी थी, लेकिन सॉल्वर क्या है, वो इससे भी आगे बढ़कर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, गोल सीक में तो हमने एक वैल्यू डाली बस काम हो गया, लेकिन सॉल्वर क्या कर रहा है, एक वैल्यू में नहीं मल्टीपल वैल्यूज से हमें हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसका एम होता है मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट निकालना मल्टीपल अननोन वैल्यूज में से। बट राइट नाउ वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी प्रैक्टिकल ऑफ सॉल्वर, हम सॉल्वर का कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द
practical of this solver is not in your syllabus right now. ये आपके syllabus में नहीं है. So if you are able to understand the concepts properly that I explained in this video and you are fully satisfied, so please like, share, subscribe and comment our channel. Press the bell icon so that whenever I upload a new video of your syllabus, you automatically get the notification of that. Thank you and see you in the next video.